students, so in today's class we are going to study the ray diagrams in the previous class, and this board will be changed tomorrow. It has become an old board, इस पे छप जाता है पुराना लिखा हुआ. We will change this board and we will have a new board tomorrow. The board is ready at home. Let us see. Three rules याद दिला दो आपको रे डायग्राम्स के. The three rules of ray diagram. Rule number 1 was this is a concave mirror and we call this point as the pole. This line is called the principal axis because it is x dash axis, and if we complete this circle, this point will be the center of the circle. So we remove this and ये point बन गया हमारा center of curvature. ठीक है. And pole and center of curvature के बीच का जो point है तो we call this focus. अब rule number 1 क्या है कि if the incident ray is parallel to the principal axis, this line is called the principal axis. Principal axis. ठीक है. And this ray is called the incident ray, आने वाली किरण. This is the incident ray. And this incident ray is falling on the concave mirror. Concave mirror समझते हो ना, ऐसा चम्मच के अंदर से देख रहे हैं अपन तो ये कॉन्केव है, और बाहर से देखेंगे ये फूला हुआ बाहर से, तो दिस विल बी कॉन्वेक्स. एंड इफ आई एम लुकिंग इन ऑन दिस साइड तो ये कॉन्केव मिरर हो गया. ठीक है. तो दिस इज द इंसिडेंट रे. अब इंसिडेंट रे यहाँ टकराएगी एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड. इंसिडेंट रे फिर रिफ्लेक्ट होगी. सो द रिफ्लेक्टेड रे, वेरी गुड. रूल नंबर 1 says the reflected ray will come through the focus. If the incident ray is parallel to the principal axis, the reflected ray goes through the focus. This is rule number 1. Very good, you remember it. Rule number 2. इसका उल्टा. This is a concave mirror. This point is called the pole. This is the principal axis. और हम अपने मन से ले लेंगे P से, यहाँ फोकस है समझो, एंड यहाँ फोकस है तो लेट दिस पॉइंट बी सेंटर ऑफ कर्वेचर. बस हमको रे डायग्राम ड्रॉ करते समय क्या याद रखना है मालूम है कि P से F जितना डिस्टेंस है, इफ यू आर ड्रॉइंग दिस डायग्राम एट होम और आप देख रहे हो तो ये अगर आपने 4 सेंटीमीटर का बनाया है F से P, तो F से C भी 4 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए. तो योर रे डायग्राम्स विल बी करेक्ट एंड यू विल नॉट हैव टू रिमेंबर देम. Rule number 2. If the incident ray is coming through the focus, अगर incident ray खुद focus से आ रही है, so this is the incident ray. हाँ, very good, very good. This is the incident ray, and the reflected ray will go parallel to the principal axis. Very good. This is the reflected ray here, and यहाँ ये वाली reflected ray थी. Okay, these are the 2 rules. अब हमको third rule देखना है. Let us see the third rule. Is it covered there? Yes. So these were the 2 rules. अब हम third rule को देखेंगे. To study the third rule, I am going to erase this one. मिटा लेना चाहिए ना? Can we see the entire board here? Yes. So I will draw the third rule on the left hand side. मैं third rule इधर बना लेता हूँ. See, the third rule says this is a concave mirror. ये जो lines बनाए मैंने, what do these lines show? ये वाली lines? हाँ, very good. It's a silver layer or aluminium layer on the back side of the glass. This point is called the pole. This is our principal axis. Again, this is the focus. और जितना फोकस है P से F है उतना ही F से C रहेगा. ये थर्ड रूल है. एंड द थर्ड रूल सेज इफ द इंसिडेंट रे इज कमिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन दिस इज द इंसिडेंट रे, आने वाली किरण. द रिफ्लेक्टेड रे विल गो बैक फॉलोइंग द सेम पाथ, और इसी रास्ते से रिफ्लेक्टेड रे भी वापस जाएंगी. यानी इंसिडेंट रे जिस
सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है रिटर्न। वी कैन ड्रॉ अनदर रे, जैसे देखो ये रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, दिस इज द इंसिडेंट रे, डायरेक्शन बता रहा है कि इट इज गोइंग टुवर्ड्स द मिरर एंड एनी रे व्हिच गोस टुवर्ड्स द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे एंड दिस इज अ कॉन्केव मिरर। स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप्स के होते हैं, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, तो ये कॉन्केव मिरर है। अब ये वाली रे इंसिडेंट होगी, अब रिफ्लेक्ट होके कहा जाएगी इट विल फॉलो द सेम पाथ बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अंडरस्टूड? दिस वाज रूल नंबर 3। मैं लिखकर इसलिए नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर वर्ड्स में क्योंकि अपन इससे पहले 2 क्लासेस में ये रूल्स पढ़ चुके हैं, है ना। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज रूल्स, दिस इज आवर रिवीजन, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग डाउन द रूल्स। ठीक है, शैल आई क्या लिखकर देना चाहिए रूल्स को? नहीं लिखना चाहिए? ओके, वेरी गुड, क्योंकि इससे पहली क्लास में हम लिख चुके हैं ये रूल्स, मैं मिटा देता हूँ। सो दीज वर द रूल्स, द 3 रूल्स। अब यही 3 रूल्स यूज करके वी विल ड्रॉ द रे डायग्राम्स। In fact, we have already drawn the first ray diagram. Come in, boys. ठीक है, आ जाओ आ जाओ। इसको उठा ले लो। One of you can go on to the last bench. One can sit here on the first bench. So let us see. अब हम रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। Now we will draw the ray diagrams. See students, रे डायग्राम क्वेश्चन कैसा आएगा? Draw a neat and well labeled ray diagram showing the formation of image by a concave mirror if the object is at infinity from the mirror. This ray diagram may be asked for 2 or 3 marks in the exam. Let me tell you, ये चैप्टर जो है पुराने सिलेबस में from 2012 to 2017 it was there in the 10th standard. तो ये रे डायग्राम 10th में आती थी पहले, 10th CBSE में भी है ये और स्टेट में भी था। So this is a concave mirror. We call this point as the pole. This is the focus. ये फोकस हो गया एंड उससे इक्वल डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ सी, हमको ये बताना है कि द लाइट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अब इंफिनिटी का मतलब ये नहीं है कि नागपुर में मिरर है और दुबई में कोई पर्सन खड़ा है, वो तो दिखेगा ही। इंफिनिटी का मतलब है बहुत दूर, मिरर से कोई पर्सन बहुत दूर अपने आप को देख रहा है। सपोज यहाँ पर कोई पर्सन है, कोई लड़का या लड़की है और वो अपने आप को देख रहा है मिरर में। रिमेंबर, अपना रूल क्या है मालूम है? वी ड्रॉ ओनली द बॉर्डर रेज। इसके सिर से एक रे, हालांकि सनलाइट इज फॉलिंग ऑन दिस पर्सन, सपोज देयर इज सन हियर, ये सन है और सनलाइट इसकी बॉडी से बॉडी पर आ रहा है और बॉडी से आके टकरा के कहाँ जा रहा है? मिरर में जा रहा है और मिरर से रिफ्लेक्ट होके कहाँ आएगा? इस पर्सन की आंखों में आएगा। तो ये पर्सन अपने आप को मिरर में देखेगा, है ना। We cannot see anything without light. If there is perfect darkness, nothing will be seen. तो ये लाइट है, सपोज दिस इज सन, सनलाइट आ रहा है इस पर्सन पर और वो लाइट इसकी बॉडी से रिफ्लेक्ट हो रहा है। हालांकि सनलाइट विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम हियर हियर हियर, फ्रॉम द एंटायर बॉडी। पूरी बॉडी से सनलाइट रिफ्लेक्ट होगा, पूरी बॉडी से टकरा के मिरर में जाएगा, मिरर से टकरा के उसकी आंखों में आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है? इन फिजिक्स
हम सिर्फ उसके बॉर्डर की रेज ड्रॉ करते हैं, हम सिर से एक रे ड्रॉ करेंगे, उसके सिर से, हेड से, और ये रे कौन सी रे बन जाएगी? दिस विल बिकम दी इंसिडेंट रे, और एक पैर से उसकी रे ले जाएंगे हम, दिस ऑल्सो विल बी दी इंसिडेंट रे, ये भी इंसिडेंट रे है। ठीक है, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ही करते हैं एंड फोकस ट्रायल राइट हियर। सो दीज टू आर इंसिडेंट रेज। हालांकि मैंने जितना ऊपर लिया उतना ही नीचे लेना चाहिए था, इसके पैर लंबे कर देना चाहिए। ऋतिक रोशन, his legs are very long. So this is the incident ray. ये इंसिडेंट रे होगी। एंड नाउ टेल मी रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ जाएगी? वेरी गुड, फ्रॉम द फोकस, क्योंकि हमारा यहाँ कौन सा रूल लगेगा? रूल नंबर 1। If the incident ray is parallel to the principal axis, the reflected ray goes through the focus। और ये बीच की लाइन को हम क्या कहते हैं? We call it principal axis। अच्छा, यहाँ की जो दो रेज है इनका हम ऐसा बताते हैं, डॉट डॉट डॉट। What is the meaning of this dot dot dot? हाँ, वेरी गुड, इट इज कमिंग, लाइट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, है ना? पर्सन की बॉडी से लाइट टकरा के इंफिनिटी से डॉट 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 डॉट, इंफिनिटी से ये लाइट आ रहा है, मिरर पे टकरा रहा है और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर ये फोकस पे जाएगा। एंड जहां भी दो रेज इंटरसेक्ट होगी वहां हमको इमेज दिखेंगी, यहाँ पर एट फोकस, फोकस पर इमेज दिखेंगी। और कैसी दिखेंगी? तो सी आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट, ये ऐसा, ये उसके पैर है, ये सिर है नीचे का, ये पेट है, ऊपर पैर है और दोनों हाथ है, मतलब उल्टा बन गया वो पर्सन की इमेज इन्वर्टेड बन गई। सो सी, ऑब्जेक्ट के बारे में हम क्या जानते हैं? वी नो द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में क्या दिया है? इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, सो द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। एंड व्हाट अबाउट इमेज? उस पर्सन की जो इमेज बनी है, जो रिफ्लेक्शन बना है मिरर में, उसको जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है? पोजीशन कहाँ दिखाई दे रही है उस पर्सन की? तो इट इज, हाँ वेरी गुड, एट फोकस। उसकी इमेज कहाँ बनी? फोकस पर। उसका साइज कैसा है? वेरी गुड, इट इज पॉइंट साइज, है ना? इतना बड़ा आदमी, 6 फीट का आदमी, बिंदु दिखाई दे रहा है, छोटा सा दिख रहा है। वी कैन से हाईली डिमिनिश्ड ऑल्सो, हाईली डिमिनिश्ड, मिनी यानी छोटा होता है, तो डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। एंड नेचर उसका कैसा है? तो वी कॉल इट रियल इमेज। दिस इज रियल इमेज। रियल इमेज के लिए फिलहाल आप क्या याद रखोगे? जब भी रेज रियली आती है और सच में इंटरसेक्ट होती है, तो कोई मिरर से टकरा के आई और ये भी मिरर से टकरा के आई, दोनों रिफ्लेक्ट हुई यहाँ पर, तो सच में इंटरसेक्ट हुई तो रियल इमेज है। ठीक है, बाद में जब वर्चुअल इमेज की बारी आएगी ना, तो मैं आपको समझाऊंगा रियल इमेज क्या होती है। एन इमेज which can be obtained, अभी समझा देता हूँ, which can be obtained या formed लिखो, obtained या formed, 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 okay, an image which can be formed on a screen is called a real image. An image which can be formed on a screen is called a real image. मतलब अगर ये पर्सन अपने आप को आईने में देख रहा है और ये लाइट, सनलाइट इसकी बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर मिरर में जा रहा है, मिरर से टकरा के यहाँ आ रहा है, अगर मैं यहाँ एक स्क्रीन रख देता हूँ, सफेद कलर का दुपट्टा रख देता हूँ या व्हाइट पेपर रख देता हूँ, तो पेपर पे वो पर्सन दिखाई देगा। और कैसा दिखाई देगा मालूम है? उल्टा दिखाई देगा, है ना? तो यहाँ अगर मैंने स्क्रीन रख दिया, पर्दा रख दिया छोटा सा, तो क्या होगा? वो पर्सन इस पे दिखाई देगा। और रियल इमेज है, और रियल के साथ कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड यानी उल्टा दिखाई दे रहा। सिर ऊपर पैर नीचे है, तो पैर ऊपर सिर नीचे दिखाई देगा। ऐसा कहाँ होता है? फन फेयर में, जब हम लाफिंग गैलरी में जाते हैं, मेले में जाते हैं कहीं, और वहाँ बहुत सारे मिरर्स रखे होते हैं, तो कोई एक ही अगर मिरर है और हम उससे बहुत दूर जाके खड़े हो गए, तो हम इतने से बिंदु से दिखेंगे, छोटे से, और उल्टे दिखेंगे, है ना? एकदम हमारा बचपन जैसा दिखेंगे, इतने से दिखेंगे हम, और उल्टे दिखेंगे। फिर हम अपने आप की फोटो ले सकते हैं और याद कर सकते हैं फिर कैसे दिखे। अंडरस्टूड? और अगर आपको ये प्रैक्टिकल करके देख रहे हो तो आप घर में भी कर सकते हैं। वो जो दाल वाला चम्मच होता है ना, वरण वाला, जो डीप होता है, गहरा होता है थोड़ा, वरण वाला चम्मच, चावल वाला नहीं, चावल वाला तो फ्लैट होता है
है ना, भात वाला फ्लैट होता है, लेकिन दाल वाला वरण वाला ऐसा रहता है कटोरी जैसा। वो चम्मच लो और इसके बाहर साइड से नहीं देखो, इधर अपने आप को बहुत दूर रखो, अपना चेहरा, आपका फेस, इससे बहुत दूर रख के देखो, आपका चेहरा सीधा है और इसमें देखो चम्मच में तो उल्टा दिखाई देगा। और कैसा दिखेगा? छोटा सा। आपके चेहरे का हाइट गिन लो, 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है, और इसके अंदर देखना तो आप इतने से दिखोगे, छोटे से, और वो भी चेहरा उल्टा दिखेगा। ओनली चेहरे दिखेगा ना, बाकी तो बॉडी मुश्किल है, फिर उसके लिए बड़ा चम्मच लाना पड़ेगा। ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड दिस डायग्राम? किसी को कोई प्रॉब्लम? एनी क्वेश्चन, क्वेरी? नहीं है? वेरी गुड। तो मैं इसको मिटा दूं? लेट मी सी वंस के ये सब हमारा बराबर चल रहा है या नहीं। यस, एवरीथिंग इज रनिंग स्मूथली। नाउ वी विल ड्रॉ द सेकंड रे डायग्राम। रियल इमेज का डेफिनेशन नहीं समझे? एंड ऑलवेज रिमेंबर, मिरर इधर है और लेफ्ट हैंड साइड पे जो इमेज बनती है उसको हम रियल इमेज कहते हैं, समझने के लिए। और एग्जाम में आई डेफिनेशन फेंकने के लिए, तो एग्जाम में क्या लिख देना होता है? एन इमेज विच कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। ऐसी आधा डजन डायग्राम्स है ये। वी हैव टू स्टडी 6 सच रे डायग्राम्स। अब देखो क्या बोलेंगे, ड्रॉ अ नीट एंड वेल लेबल्ड रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। नहीं बोलेंगे, अगर ऐसा आया द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड यानी पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, ऐसा लिख के आएगा। सी देयर इज अ टेबल गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक, वन टेबल इज गिवन, है ना, उस टेबल में शो किया है। So do we have to remember this table? Do we need to remember the table? No. हमको ये टेबल लर्न नहीं करना होगा। 1 minute. We don't have to memorize this table. ये टेबल लर्न हो जाता है, सिर्फ 2-3 बातें याद रखना है। अब देखो, दिस इज अगेन अ कॉन्केव मिरर, ये पोलू पोल, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ऑब्जेक्ट इस बार कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। अब ये पास में आ गया, पहले इंफिनिटी पर था तो पूरा दिखाई दे रहा था सिर से पैर तक, अब ये सामने सरक गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आ गया, तो अब ये आधा ही दिखाई दे रहा है, पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, इसके नीचे का नहीं दिखता। ऐसा हमको इमेजिन करना है, ठीक है। अच्छा, वो रे डायग्राम में मैंने जो पर्सन बनाया था, एग्जाम में पर्सन नहीं ड्रॉ करना है हमको, एग्जाम में ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेना है ओनली। अंडरस्टूड? नहीं तो आप वहाँ पे पूरा बना दोगे अंसार सर और कार्टून और पूरा डिजाइन, तो ऐसा नहीं करना है हमको। सी दिस इज द ऑब्जेक्ट, उसका नाम, उसका सिर ए है और उसका पैर बी है। अब ये कहाँ जाएगा इसके बारे में हमको सोचना है। लेट अस सी, देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट रे जाएगी इन ऑल द 6 रे डायग्राम्स, पूरी जितनी भी रे डायग्राम्स है, सब रे डायग्राम में एक चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? कि पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी। दिस इंसिडेंट रे विल ऑलवेज बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सब रे डायग्राम में एक बात तो कॉमन है। अब ये कहां से जाएगी? वेरी गुड, फोकस से होके जाएगी, है ना, हमारा तो रूल ही है। अब सेकंड रे कहां से जाएगी? द क्वेश्चन इज सेकंड रे कहां से जाएगी? तो ये हमको याद रखना है। ऑब्जेक्ट सेंटर के पीछे है, प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ वेरी गुड। सेकंड रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी। तो लेट अस सी, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, इसमें मैं ना थोड़ा हेरा फेरी भी करूंगा जानबूझ के, बिकॉज ये जो रे डायग्राम्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आई एम नॉट मेजरिंग, मैं गिन के नहीं बना रहा हूँ, है ना। मैंने ये नहीं गिना कि ये 4 सेंटीमीटर से, तो ये भी 4। देखो सच में देखा जाए तो ये छोटा दिख रहा लेंथ, और ये बड़ा दिख रहा है,
तो मेरे ऐसे छोटा बड़ा करने के कारण, यानी मेरे ड्राइंग में थोड़ी मिस्टेक होने के कारण डायग्राम सही जगह पर नहीं बन पाएगी, बिकॉज आई हैव नॉट ब्रॉट माई स्केल। तो मैं अपने मन से ले रहा हूँ, ये एफ ले लिया इतना, तो इसके नियरली मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी हियर, आई एम नॉट मेजरिंग। आप गिन के बनाओगे तो आपकी डायग्राम कभी गलत नहीं होगी, ठीक है। ये देखो सेकंड रे कहाँ से जाएंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये गई। बताओ कहाँ से वापस आएगी, वेरी गुड, इट विल फॉलो द सेम पाथ बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। अब दो रेज कहाँ इंटरसेक्ट हुई, पैरेलल वाली फोकस से आई, सेंटर वाली ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट हुई, तो इमेज यहाँ बनेगी। और कैसे बन रही, नीचे इंटरसेक्ट हो रही रेज, तो इमेज नीचे बनेगी, ऐसी नीचे बनेगी इमेज, यानी इसका सिर नीचे हो जाएगा ए और पैर ऊपर हो जाएंगे बी। मतलब वो पुतला बना के दिखाऊं मैं, Shall I draw a human being here? If this is Ansar sir standing here, ये अंसार सर है इधर, तो यहाँ पर भी अंसार सर दिखेंगे, लेकिन उल्टे दिखेंगे और छोटे दिखेंगे। अब एकदम बिंदु नहीं दिखेंगे, है ना, पहले एकदम पॉइंट साइज दिख रहे थे, लेकिन अब मेरी हाइट थोड़ी बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी, क्योंकि मैं मिरर के पास गया। जैसे जैसे हम मिरर के पास पास जाएंगे तो हमारी हाइट, हमारा साइज बड़ा बड़ा होता जाएगा, समझ लो। जैसे जैसे हम फोकस तक पहुंचेंगे तो हमारा हाइट बड़ा बड़ा होता जाएगा। अब लेट अस राइट डाउन अबाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में हम क्या जानते हैं, तो क्या जानते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ है, वेरी गुड, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। व्हाट डू वी नो अबाउट द इमेज, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, कहाँ बन रही इमेज, टेक्स्ट बुक में देख के बताओ। टेक्स्ट बुक में नीचे से ऊपर दिया है शायद, हाँ, 6th वाला जो था उसमें क्या था, एट अ वेरी लार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। नेचर कैसा था, इन्वर्टेड है, रियल, और साइज कैसा था, पॉइंट डिग्री। अब 5th वाला देखो, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ द इमेज का है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो देखो सच में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है एंड ये फोकस है, उन दोनों के बीच में बनी, है ना। तो इसका मैं डायग्राम नंबर ये 5 दे देता हूँ इसको। टेक्स्ट बुक में उल्टा किया है ना, तो अपन ने पहले कौन सी रे डायग्राम पढ़े, 6th वाली, अब कौन सी पढ़ रहे हैं अपन, 5th वाली पढ़ रहे हैं। तो पोजीशन कहाँ है इमेज की, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, समझ में आई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में है। देन व्हाट अबाउट द साइज ऑफ द इमेज, नहीं साइज बड़ी है, एनलार्ज्ड है, डिमिनिश्ड, वेरी गुड। ये हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, सिर्फ डिमिनिश्ड है। पहली वाली तो बिंदु जैसी बनी थी पॉइंट, जब वो पर्सन इंफिनिटी पर खड़ा था तो इतना सा दिख रहा था, बिल्कुल छोटा सा। अब थोड़ा पास में गया तो अगर ये 6 फीट का आदमी है तो यहाँ कम से कम 4 फीट का तो दिख रहा होगा, नहीं 4 नहीं, कम से कम 2 फीट का तो दिख रहा होगा, है ना। 6 फीट का आदमी 2 फुट का दिख रहा है, 2 फीट का दिख रहा है यहाँ पर, तो इमेज थोड़ी पहले वाले से बढ़ गई, लेकिन अभी भी डिमिनिश्ड है, इसकी हाइट ज़्यादा है। इसको क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की हाइट कैसे डिनोट की जाती है मालूम है, H1, H उसके नीचे 1 लिख देना। H1 इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इमेज की हाइट H2 है, यानी यहाँ पर क्या हो गया, H1 इज ग्रेटर देन H2, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द इमेज, अंडरस्टूड। तीसरा नेटुरे, नेचर, रेज सच में इंटरसेक्ट हो रही है, हाँ वेरी गुड, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज का मतलब है अगर हम यहाँ स्क्रीन लगाते हैं, पर्दा लगा देते हैं ऐसा, ये पर्सन तो यहाँ खड़े करके इसको बोले भैया तुम अपने आप आईने में देखो, और हम यहाँ देख रहे हैं, तो मिरर से लाइट आएगा और यहाँ वो पर्सन दिखाई देगा हमको यहाँ। तो स्क्रीन पर बन रही है इमेज, पर्दे पर बन रही है, इसलिए ये रियल इमेज है। और हम याद भी कैसा रखते हैं, सच में रेज आई, इंटरसेक्ट हुई, और जो लेफ्ट में बनती है वो हमेशा रियल इमेज होती है मिरर में। तो रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड यानी उल्टा, पर्सन अगर सीधा खड़ा है या खड़ी है तो उल्टा दिखेगा, ये दिखेगी, है ना। फन फेयर में ऐसे होता, मेरे वाले में एक मिरर लगा है गोल वाला, बड़ा मिरर रहता है, ऐसा दीवार के सामने गोल बड़ा मिरर रहेगा कॉनकेव। हम जब बहुत दूर खड़े थे और अपने आप को मिरर में देख रहे तो हम छोटे से दिख रहे थे और उल्टे दिख रहे थे,
फिर हम 2-4 कदम उसके पास में आए मिरर के थोड़ा नजदीक आए तो हम थोड़े बड़े दिखने लगे। समझ रहे हो? मिरर के जब हम थोड़ा पास में आए तो हम थोड़े बड़े दिखने लगे। ये देखो थोड़े तो बड़े हुए पहले से, अब और पास में जाएंगे तो और बड़े दिखेंगे। ये समझ गया सेकंड रे डायग्राम? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी, एनी क्वेश्चन इन योर माइंड? अंडरस्टूड? वेरी गुड। तो इसको भी हम मिटा देंगे फिर। ये थी हमारी 5th वाली रे डायग्राम। पहले हमने 6th वाली पढ़े, फिर 5th वाली पढ़े। हमारी बुक में जैसा दिया हम वैसे ही पढ़ रहे उसको। अब क्वेश्चन चेंज, द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड था पहले, अब कहाँ है ऑब्जेक्ट? अब हम 4th वाला देखेंगे एंड 4th वाले में क्या दिया है? ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गई स्ट्रेट रे, ये हो गया फोकस। ठीक है, मेरा डायग्राम आपको मालूम है गलत बनता है क्योंकि मैं सच में पूरा सही गिन के नहीं बनाता हूँ, मैं एक रफ कैलकुलेशन से बना रहा हूँ। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सपोज वी नो सी से जितना एफ रहेगा, एफ से उतना ही पी रहना चाहिए। ये रे डायग्राम्स आपको घर में जाके ड्रॉ करना है स्केल यूज करके। ठीक है, स्केल से गिनकर आपको ये रे डायग्राम्स बनाना है। तो सी ऑब्जेक्ट कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कितनी हाइट रखेंगे ऑब्जेक्ट की हम? जितनी हमारी बुक में मिरर के अंदर आ जाए। पता चला मिरर छोटा, ऑब्जेक्ट खूब लंबा कर दिया हमने, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहुत छोटा भी नहीं बनाना, और धूप भर के डायग्राम नहीं बनाना। कोई स्टूडेंट्स, पहले मैं अपनी ऑफलाइन क्लास होती थी रेगुलर, तो मैं स्टूडेंट्स को है ना होमवर्क देता था, दूसरे दिन ड्रॉ करके लाने बोलता था पेजेस पे, 2-4 पेजेस पे। तो कोई लोग इतना पेज भर के डायग्राम बनाते थे, उसमें टाइम भी वेस्ट होता और इतनी बड़ी डायग्राम ड्रॉ करके क्या फायदा। तो और बहुत छोटी भी नहीं ड्रॉ करना है, माइक्रोस्कोप लगा के चेक करना पड़ेगी। तो सी दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब बताओ फर्स्ट रे कहाँ जाएगी? हर डायग्राम में एक रे तो कॉमन है। हाँ, फर्स्ट रे तो इसलिए पक्की है कि ये पैरेलल वाली हमेशा ड्रॉ करना पड़ता है। हमको कुछ भी नहीं आता तो आधा तो ये ड्रॉ करके रख सकते हैं हम इतना। और इसको कहाँ लाएंगे वापिस? फोकस। वेरी गुड, फोकस से वापिस लाएंगे। अब मैं हेराफेरी करने वाला हूँ, ठीक है, बिकॉज मैं गिन के नहीं बनाया तो मैं हेराफेरी करूंगा। आप लोग नहीं सीखना ये सब गलत काम। तो ये होगी इंसिडेंट रे और ये वाली होगी रिफ्लेक्टेड रे। यू डोंट हैव टू राइट दिस इन दी एग्जाम। एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं पड़ेगा आपको कि ये रिफ्लेक्टेड रे है। आपके समझाने के लिए मैं लेबलिंग कर रहा हूँ, आपको बस लिखना है दिस इज ए एंड दिस इज बड़ी बी, ये बी है। अब उसके बाद सेकंड रे कहाँ से जाएगी? अब सेकंड रे कहाँ से जाएगी? तो हम याद रखेंगे द सेकंड रे विल पास थ्रू द फोकस। सेकंड रे कहाँ से जाएंगी? फोकस। क्या टेक्स्ट बुक में दिया है ये सब डायग्राम्स ड्रॉ करके? नहीं, दीज डायग्राम्स आर नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक। उन्होंने ओनली वो टेबल बना दी और बता दिया डायग्राम यहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा, इमेज यहाँ बनेगी, ये हमको बनाना है। तो फर्स्ट क्या याद रखना, जब ऑब्जेक्ट सेंटर के पीछे रहता है तो फर्स्ट रे तो हमेशा पैरेलल और फोकस वाली होती है। सेकंड रे कहाँ से गई थी थोड़ी देर पहले? जब ऑब्जेक्ट सेंटर के पीछे रहा तो सेकंड रे सेंटर से जाती है। जब ऑब्जेक्ट खुद सेंटर पे आ जाए तो सेकंड रे फोकस से जाती है। When the object is standing at center of curvature, the second ray goes through the focus. अच्छा, जो रे फोकस पर जाती है वो कहाँ जाती है फिर? रिफ्लेक्ट होके। If the incident ray is coming through the focus, हाँ वेरी गुड, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज रूल नंबर 2 कि जब फोकस से आती है तो कहाँ जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाती है। तो पैरेलल लेके जाएंगे इसको। अब देखो मैं हेरा फेरी करने वाला हूँ क्योंकि मुझे मालूम है ये डायग्राम, ये वाली डायग्राम बहुत तकलीफ देती है मुझे। ये ऐसी समझो रिफ्लेक्टेड है, मैं इसको ला रहा हूँ पैरेलल में। ये आ गई है ना। और दोनों इंटरसेक्ट कहाँ हुए? पैरेलल पैरेलल पैरेलल, हाँ यहाँ हो गया। ये देखो इंटरसेक्ट दिखा, ये देखो ये इतना बड़ा दिख गया है ना। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये बी है। अब ये देखो ये इमेज बन गई।
ये ए ऊपर था सिर इसका, और इसका सिर नीचे बन गया ए डैश, और बी इसके पैर नीचे थे, लेकिन ये उल्टी बनी डायग्राम, तो इसका ये बी डैश, इसके पैर नीचे। समझे? देखो फिर मैं वहाँ पे ह्यूमन बीइंग बना के भी बताता हूँ आपको। पहले हम ये लिख लेंगे ऑब्जेक्ट, वेयर इज द ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। वेरी गुड। अबाउट द इमेज, what do we know about the image? So we know the position of the image. The image is formed at center of curvature. Object भी वही, image भी वही। What about the size? साइज कैसा दिख रहा है आपको? H2 है। साइज कैसा है? वेरी गुड, सेम 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 साइज हो गया। H1 इज इक्वल टू H2, सेम साइज हो गया। नटूरे रियल एंड इन्वर्टेड, हाँ इन्वर्टेड एंड रियल बोले तो भी चलता। रियल इसलिए क्योंकि यहाँ पर्दा लगा देंगे स्क्रीन तो उस पर दिखेगा ये पर्सन, और इन्वर्टेड इसलिए कि सीधा पर्सन खड़ा है उल्टा दिखेगा। जैसे कि मैं ड्रॉ करके एग्जाम में इतना ही ड्रॉ करना है, समझाने के लिए मैं देखो यहाँ क्या कर देता हूँ। ये किसी पर्सन का हेड है, सिर है, ये उसका धर्मपेट है, पेट, और ये उसके पैर है, ये उसके हाथ है, ऐसा कोई पर्सन है। और यहाँ दिखेगा ऐसा, ये उसका सिर है, ये उसका पेट धर्मपेट है, और ये उसके पैर है, और ये हाथ है। यानी जितने हाइट का कोई पर्सन है, 6 फीट का पर्सन है, अपने आप को देख रहा है, तो जैसे आप किसी मेले में चले गए समझो, ऐसे लाफिंग गैलरी में, तो वहां जाके क्या कर रहे हैं, आपने ऐसा बड़ा मिरर दिखा आपको, आर्क ऑफ अ सर्कल जैसा कॉन्केव मिरर, तो आप क्या करना, कॉन्केव मिरर से उस पर टेप लगा के उसका ये आर्क गिन लेना। और मैथ्स में आपको शायद कोई फॉर्मूला आया होगा कि आर्क से रेडियस पता चल जाती, तो ये पता कर लेना कि इसकी आर्क इतने इतने मीटर की, इतना बड़ा मिरर है, उसकी रेडियस जहाँ आती होगी वहाँ फोकस आता। फोकस से पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी नहीं फोकस से नहीं बोलते, सॉरी सॉरी सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक जो डिस्टेंस रहता है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो अगर हमको मिरर का ये आर्क पता चल गया कि कितना बड़ा मिरर है, तो मैथ्स का फॉर्मूला आप एजाज सर से पूछ के उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन पता लगा सकते हैं। रेडियस मालूम होगी तो ये, और जानबूझ के ये यहाँ जाके खड़े हो जाना यहाँ, और वो मिरर वाले भैया को बोल देना, भैया तुम मिरर पे पर्दा डाल दो, हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। देखो हम जितने हाइट के ना, हम उतने ही हाइट के मिरर में दिखेंगे, लेकिन उल्टे दिखेंगे। और सच में फिर वो पर्दा हटाएंगे और आप अपने आप को देखोगे तो आप सच में उतने ही हाइट के दिखोगे जितने हाइट के आप हो, लेकिन कैसे दिखोगे? उल्टे दिखोगे। तो फन फेयर में क्या होता, मेले में हम गए, ऐसा कॉन्केव मिरर है, तो हम जब इन्फिनिटी पे खड़े थे बहुत दूर, तो हम छोटे और बिंदु दिख रहे थे। थोड़ा पास में गए तो छोटे और उल्टे दिख रहे थे, फिर और पास में गए सेंटर के तो हम सेम साइज के दिख रहे लेकिन उल्टे दिख रहे। अब सेंटर से आगे जाके देखेंगे क्या होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, हाँ बोलो। How do we know? We will see ourselves in the mirror. मतलब suppose I am standing in front of the mirror, तो मेरा सिर ये हाइट पर आ रहा है, तो मिरर में देखूंगा ना तो सेम हाइट पे मेरे पैर दिखेंगे। मैं क्या करूंगा, मेरे साथ में एक फ्रेंड को ले जाऊंगा, मैं मिरर के सामने खड़े हो जाऊंगा और मेरे फ्रेंड को बोलूंगा एक लंबी सी लकड़ी लेके आओ स्ट्रेट वाली, और वो मेरे सिर पे रखेगा स्ट्रेट वाली लकड़ी, और वो स्ट्रेट वाली लकड़ी जाके मिरर पे टच होंगी, तो जहाँ टच होंगी वहाँ मेरे पैर दिखेंगे, सॉरी लेग्स है ना, मेरे फीट दिखेंगे। और पैर के पास वो लकड़ी रखूंगा, मेरे पैर से टच करूंगा और मिरर पे टच करूंगा, तो जहाँ मिरर पे टच होगी वहाँ मेरा हेड ही दिखेगा। तो उससे हमको पता चल जाएगा हमारी हाइट इतनी दिख रही है। सी दिस इज द रे डायग्राम। आपको ऐसा लग रहा है कि हम देख रहे हैं यहाँ, लेकिन हम इधर क्यों दिखेंगे नीचे? दिस इज इमेजिनरी रे डायग्राम। इन द मिरर इफ यू आर स्टैंडिंग हियर यू विल सी योरसेल्फ हियर, यानी आप यहाँ खड़े हो ना तो आप यहाँ इसमें दिखोगे, मिरर में, नीचे नहीं दिखोगे। ये रे डायग्राम बनाने के लिए हम इसको नीचे बनाते हैं कि इन्वर्टेड दिख रहा है ये बताने के लिए। अदरवाइज इफ दिस इज द मिरर, अगर ये मिरर के सामने हम खड़े ये यहाँ पर, तो मिरर के अंदर दिखेंगे हम, यहाँ हम ऐसे दिखेंगे, यहाँ दिखेंगे हम।
हाँ, इट विल ऑलवेज बी इक्वल। अगर आपने अपनी हाइट गिन ली और मिरर में जाके यहाँ गिन लिए तो इट विल बी इक्वल। आप अपनी हाइट गिन के जाना घर से या वहाँ जाके गिन लेना और फ्रेंड को बोलना मिरर में मैं दिखाई दे रहा हूँ तो मेरी हाइट गिनो, तो गिनेंगे तो सेम आएगी। कब? जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़े होंगे तो, और उल्टे दिखाई दोगे आप। बट अब रे डायग्राम से ये इमेजिनेशन वाला चीज़ है, दैट्स वाई हम यहाँ नहीं बना रहे रे डायग्राम, यहाँ बना रहे। जितने दूर आप मिरर से खड़े हो, मिरर के अंदर भी आप उतने ही दूर दिखोगे। प्लेन मिरर में क्या होता है, अगर मैं प्लेन मिरर के 2 फीट आगे हूँ, अच्छा मुझे आप में से कुछ लोगों के नाम एक बार जो है ना वो बता दो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में कभी कैमरा ऑन होता था, कभी नहीं होता था। तो कुछ लोगों को मैं पहचानता हूँ, जैसे सारोश है एंड साद, रेहान, सॉरी रेहान, साद, फराज, ओके, साद इज एब्सेंट है ना, ओके, अजीम, पीयूष, ओके, हमजा, यामीनी, अलशिफा, नमिता, ओके, जैनब, मदीहा, राफिया एंड लास्ट में महविश, ओके, ऑलराइट। तो 6 स्टूडेंट्स, ये किसी को समझ में आया? डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क? एग्जाम में हम ये वाला नहीं ड्रॉ करते, हम ये यहाँ ड्रॉ करते हैं। अच्छा, प्लेन मिरर की स्पेशलिटी क्या होती है? प्लेन मिरर जो घरेलू मिरर होता है, उससे हम अगर 3 मीटर दूर खड़े हैं और मिरर में देखें तो 3 मीटर दिखता है, हम अगर पीछे पीछे जाएंगे मिरर से, अपने घर के मिरर से, तो अपनी जो इमेज रहती मिरर में वो भी क्या करती, पीछे पीछे जाती। और मिरर के हम पैदल पैदल पास में आएंगे तो वो इमेज भी पास में आती है। तो यहाँ पे भी वही होगा, हम मिरर से जितने दूर खड़े हैं, तो इससे कॉन्केव से मिरर के अंदर भी उतने ही दूर दिखेंगे, ऐसा होगा अगर सेंटर पे खड़े हो। ठीक है, इसको बोलते हैं, यहाँ से हमारे डिस्टेंस से फोकस के डिस्टेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। समझ लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अभी तो समझो मैं खड़ा हूँ और पोल, तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस किसको बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में से कौन ज्यादा दूर है और कौन पास है, बताओ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बड़ा है या इमेज डिस्टेंस बड़ा है? बोथ आर द सेम, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम यू से डिनोट करते हैं, वी डिनोट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी डिनोट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय यू एंड वी डिनोट इमेज डिस्टेंस बाय वी। इमेज कितने दूर है पोल से, उसको हम v से बताते हैं। तो ये इन दिस डायग्राम u इज इक्वल टू v। अगर हम 5 मीटर दूर खड़े हैं तो 5 मीटर दूर ही मिरर के अंदर भी हम दिखाई देंगे। डन। मोडून देऊ डायग्राम? काय सांगता स्टुडंट्स, म्हणा काहीतरी म्हणा। मिटा दू डायग्राम? Shall I erase it? Okay. You don't need to note it down because ये हमारा तो रिकॉर्डिंग हो ही रहा है, बट होमवर्क के लिए आप घर में प्रैक्टिस करने के लिए ड्रॉ करके देखोगे। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में हमको याद ही नहीं आता कि सेकंड रे कहाँ से ले जाना है। सो दिस इज द सेकंड, सॉरी ये कौन सी वाली रे डायग्राम थी? 4th वाली थी ना। लेट अस नाउ प्रोसीड टू स्टडी द थर्ड रे डायग्राम। अच्छा, एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, देखो रफ याद दिला देता हूँ कि ये कॉन्केव मिरर है, छोटा सा डायग्राम, पोलू, फोकू, सेंट्रू, ऑब्जेक्ट कहाँ था पहला वाला? इंफिनिटी, डॉट 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 सीधी लाइन, डॉट 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 सीधी लाइन। फर्स्ट रे डायग्राम में ऐसा हुआ था, ध्यान से समझो। और फिर रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ आई थी? यहाँ आई थी फोकस पे, और ये भी फोकस पे आई थी। तो इमेज कैसी बनी थी? फोकस पे बनी थी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था, इमेज फोकस पे बनी थी और उल्टी थी। वेरी गुड, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड थी एंड पॉइंट साइज। ये फर्स्ट, ये 6th वाली रे डायग्राम थी, है ना। चाहे तो देखो रिवीजन कितने से भी कर सकते हैं हम, एग्जाम में जाना है तो इतनी सी चिट्ठी पे बना के ले जा सकते हैं, चीटिंग करने, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा करना नहीं है। फिर 5th वाली रे डायग्राम में हमने क्या किया? ये कॉन्केव मिरर था, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट कहाँ था? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे था। तो फर्स्ट रे पैरेलल थी और फोकस से गई, ये तो हमको मालूम है।
और सेकंड रे कहाँ से गई? सेंटर से। तो ये हम याद रखेंगे, जब ऑब्जेक्ट सेंटर के पीछे रहता है तो सेकंड रे सेंटर से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और वैसे वापिस अभी उल्टे मुंह, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट वहाँ इमेज बन गई। अगर ये ए है ये बी है तो इसका नीचे ए डैश और ऊपर बी डैश, उल्टा बन गया है ना। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ है? बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में है। कैसी इमेज है? रियल एंड इन्वर्टेड है। साइज कैसा है? डिमिनिश्ड है। ये देखो, ये बड़ी हाइट है, ये कम हाइट है। ये हो गई फिफ्थ वाली रे डायग्राम। कितने जल्दी रिवाइज किए। मेरा एम ये है आपको याद दिलाने कि ऑब्जेक्ट जब सेंटर के पीछे रहता है तो सेकंड वाली रे कहाँ से जाती है? सेंटर से जाती है। और जब ऑब्जेक्ट सेंटर पर रहता है तब सेकंड रे कहाँ से जाती है? फोकस से। वेरी गुड। हाँ, मुझे यही सुनना था कि जब दिस इज पोल, फोकस, सेंटर, जब ऑब्जेक्ट सेंटर पर रहता है तो फर्स्ट रे तो हमको हमेशा के लिए रट जाएंगे कि ये पैरेलल और फोकस ही होती है हमेशा। सेकंड रे कहाँ से जाती है? तो फोकस। जब ऑब्जेक्ट सेंटर पर होता है तो सेकंड रे फोकस से जाती है, पैरेलल आती है, फिर आती है पैरेलल तो बन जाती है इमेज। ठीक है, सेम हाइट, सेम साइज, सेम डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे जा रहा है। नाउ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस, हाँ, द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर एंड फोकस ऑफ, सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो ये देखो, ये हमारा कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर, दिस इज द पोल, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। बीच की एक्स डैश एक्सिस कौन सी होती है? प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि एक्स डैश एक्सिस है। इसको ओरिजिन समझ लो ग्राफ का। ग्राफ पता है आपको? ये ओरिजिन है, समझो। इधर ड्रॉ करेंगे तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगी और इधर की वाई एक्सिस, नहीं, एक्स डैश होती है। ये वाई एक्सिस बन रही है ऊपर और ये वाई डैश बन रही है नीचे। अगर इसको हम ग्राफ समझे तो, है ना, फिर वो बाद में डिस्कस करेंगे हम। नाउ सी ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर एंड फोकस। तो ये यहाँ से मैं इतने डिस्टेंस पे ले लेता हूँ फोकस और अंदाज से गिनता हूँ 1 स्पैन, ये वाला। तो यहाँ से इतने इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ बन जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? सेंटर ऑफ फोकस के बीच में कहीं भी बना सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि बिटवीन यानी बिल्कुल इनके मिड पॉइंट पे ही ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। कहीं यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ, लेकिन बेटर है कि बीच में रख दिया जाए। ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ए बी। ऑब्जेक्ट का नाम ए बी है। अब ये रे देखो, पहला रूल तो हमको मालूम है, पैरेलल गोज थ्रू फोकस, पैरेलल वाली फोकस से। सेकंड रे कहाँ से जाएंगी? अब यहाँ आ गई दिक्कत। सेकंड रे कहाँ से जाएगी? बोर्ड में जगह भी खत्म हो जाएगी। ये डायग्राम हमें ऊपर बनाना चाहिए थोड़ा, लेटेस्ट देखते होता है कि पॉसिबल। तो अब देखो, एक रूल अच्छे से याद रख लेना है हमें। वो क्या रूल है कि ऑब्जेक्ट जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे जाता है, ऑब्जेक्ट जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे जाता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ये बात पसंद नहीं आती और वो हमेशा क्या करता है? एक ऐसी रे भेजता है जो ऑब्जेक्ट के सिर पे खट्टू मारती है। ये ऐसी रे आएंगी और इसके सिर पे टकराएंगी और टकरा के यहाँ जाएंगी, यहाँ जाएंगी, यहाँ। समझे? याद रखना है कि whenever the object goes in front of center of curvature, ऐसी 3 डायग्राम्स पढ़ेंगे हम, 3 डायग्राम्स, तीनों में वही होने वाला है। क्या होगा मालूम है? ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर की, अब देखो, अब इस बार कहाँ है? सेंटर एंड फोकस के बीच में है। नेक्स्ट डायग्राम में कहाँ रहेगा ऑब्जेक्ट मालूम है? फोकस पे रहेगा। उसके नेक्स्ट डायग्राम में ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? फोकस एंड पोल के बीच में रहेगा। फिर खत्म हो गया। तो देखो, ये रूल क्या है? सेंटर से रे गई, इसके सिर पे खट्टू मारी और सीधे ऊपर गई। अब ये रे रिफ्लेक्ट होकर बताओ कहाँ जाएगी? Who will tell me? ये रे यहाँ टकराई, अब ये रे जाएगी कहाँ? सोच के बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका नाम आपने रेहान बोले क्या? फराज। वेरी गुड फराज, करेक्ट। तो ये रे देखो कहाँ से जा रही है?
सेंटर से। और हमारा रूल नंबर 3 क्या है, जो रेज सेंटर से जाती है वो आती भी सेंटर से, ये वापस आ जाएंगी और वापस आएंगी तो ऐसी आएंगी, ऐसी। और ये वाली रे इधर से आ रही है और दोनों इंटरसेक्ट हो गए यहाँ पर। दिख रहा है आपको? बीच में ये तो नहीं आ गया? इज इट विजिबल? ओके। तो देखो अब यहाँ दो रेज यहाँ इंटरसेक्ट हो गई, तो हम यहाँ इमेज बनाएंगे रेज उल्टी इन्वर्टेड। ये बी रहेगी उसके पैर ऊपर और सॉरी बी डैश और ए डैश उसका सिर नीचे रहेगा। अब इसके बारे में आप बताओ, ऑब्जेक्ट के बारे में हम क्या जानते हैं? ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है? बिटवीन फोकस एंड सॉरी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इमेज की पोजीशन कहाँ है? हाँ देखो, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन गई, तो इट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज कैसा इमेज का? मैग्नीफाइड है ना। ये देखो ये हाइट h1 कितनी छोटी सी दिख रही और ये h2 देखो इतनी बड़ी हाइट, तो ये है एनलार्ज्ड। बुक में एनलार्ज वर्ड आया कि मैग्नीफाइड आया? मैग्नीफाइड, हाँ मैग्नीफाइड यानी बड़ी होगी, मैग्नीफाई होगी। मैग्नीफाइंग ग्लास आता है ना, इसी भी प्रतिबिंब के पास रहता कांच, उसमें से देखो तो मोटी मोटी आंख दिखाई देती है उसमें से। तो अच्छा नटूरे, हाँ इन्वर्टेड एंड रियल। सच में रेंज इंटरसेक्ट हो रही है, लेफ्ट में डायग्राम बन रही है, हम समझ गए ये रियल है, इमेज स्क्रीन पे बन सकती है। अब अगर हमको पुतले की भाषा में समझना है तो हम ऐसा बनाएंगे, ये अगर किसी का सिर है, ये पैर है ऐसा, तो यहाँ क्या बनेगा, ये सिर इतना बड़ा, ये पैर इतना बड़ा, पैर पेट इतना बड़ा बन गया इसका, और ये पैर भी इतने बड़े बड़े बने, इतना बड़ा दिखेगा। अच्छा बताओ, आप मिरर के पास में खड़े हैं, ऑब्जेक्ट मिरर के पास में खड़ा है या दूर है एज कंपेयर टू इमेज? पास में है। तो जब आप इसके पास खड़े हो मिरर के, तो आप मिरर में कहाँ दिखाई देना चाहिए? पास में दिखाई देना चाहिए। लेकिन ऐसा लगेगा कि आप मिरर से बहुत दूर खड़े हो, यानी मिरर के बहुत अंदर दिखोगे आप, ऐसा लगेगा आप कितने दूर हो। आप लोग यार मिरर तो मेरे सामने है, लेकिन मिरर तो इतने पीछे क्यों दिख रहा है, इतना दूर क्यों दिख रहा? क्योंकि इमेज का डिस्टेंस कहाँ है? दूर है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम है ना। ऑब्जेक्ट पोल से नजदीक है और इमेज पोल से दूर है। ये इमेज है, क्या मानता बरोबर कि नहीं? सब गलत गलत पढ़ा दे रहा ना, कुछ भी। हाँ सही है, वेरी गुड। तो ये हो गया, इसके बारे में हमने लिख ली है इंफॉर्मेशन। एग्जाम में पुतला नहीं बनाना, बस रेज बनाना। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ए बी एंड इधर क्या है, ए डैश बी डैश इमेज का, और हाइट इज h1। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा h1 से बताती है, इमेज की हाइट हमेशा h2 से। अब यहाँ देखो इमेज कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी, यानी सेंटर पर था तो कैसी थी, सेम साइज, सेंटर से आगे गया तो मैग्नीफाइड हो गई। अब इससे भी बड़ी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, कब? जब ऑब्जेक्ट फोकस पे खड़ा है ना। लेट मी चेक, 48 मिनट्स। ओहो, फोकस हमने टेक्स्ट बुक यहाँ रखे थे ना नज़दीक, तो यहीं का फोकस रहा हूँ, थोड़ा ब्लर हो रहा था थोड़ा देर से। ओके 48 मिनट्स का ना, इसको रुका दे।